Yes, sir. I am going to explain this PPT spatial reasoning. Spatial means space, and reasoning, we give the reason that a particular 3D object occupies how much space. We would be able to understand कि what is the relation between the space occupies by a three-dimensional object. Okay, so three-dimensional objects are those objects that are having length, breadth and height, and how much space they cover. That is spatial reasoning. Here we can see that a picture of object is given. So we want to say about the top view of this figure. As we know that we can see this figure from front, from side or from the top. So when we look at the figure from the top, so what would it be like? It will be more like A and D. It won't be like B or C, that a child will understand by seeing the traces A, B, C, D. Now he has to make the conclusion whether A or D is the correct answer. Then he will see that an L-shaped figure is drawn here. After that, a cube is placed. So we will see from the top. When we see from the top, we will see a square. Okay, in front of that L shape, we will see a square figure, and beside that we will see two square cubes, the faces of two squares. Okay, so it will be more like A. So a child would be able to conclude that A would be the top view of this object. Now we come to the second. How many cubes are present in this solid? As we can see that the base of these objects, two objects that are given, is a square made up of 4 blocks. Okay, now when we count that 3 rows are raised and 1 is not raised, there is only 1 block in that. So 5 3s are 15 plus 1, 16 blocks are there in the first one, and 3 rows are raised up to 3 blocks and 1 is not raised. So 3 3s are 9 plus 1, 10. So 26 total blocks would be there. So E is the correct answer. After that, imagining, we have to see that how we construct or draw things, or what would it be like. Which of the following cubes would then the net shown from when cut and folded? So in this activity we can see that कि एक क्यूब को काट कर उसको बिछाया गया है, उसको फैलाया गया है, और हमें बोला गया है कि जब हम इसका क्यूब बनाएंगे तो वो इन चारों में से कैसा कैसा दिख सकता है. तो फ्रॉम दिस फिगर वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि जो इसका ग्रीन वाला साइड है और येलो वाला साइड है वो एक दूसरे के ओपोजिट है, तो ये कभी भी साथ में नहीं आएंगे. अगर हमें ग्रीन दिखेगा तो येलो नहीं दिखेगा, और येलो दिखेगा तो ग्रीन नहीं दिखेगा. फिर पिंक और रेड ओपोजिट साइड्स हैं, तो ये कभी भी एक साथ नहीं आएंगे. जब हमें पिंक दिखेगा तो रेड नहीं दिखेगा. अगर टॉप में पिंक है तो बॉटम में रेड होगा, अगर टॉप में रेड है तो बॉटम में पिंक होगा. ठीक है, तो ये एडजेसेंट साइड्स हैं, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देंगे. उसी तरीके से लाइट ब्लू और डार्क ब्लू दोनों ओपोजिट हैं. जब इसका क्यूब बनेगा तो ये 4 साइड्स बनेंगी, पिंक, ग्रीन, रेड और येलो, और टॉप बनेगा इसका स्काई ब्लू. when we fold it like this, जिस तरह से इसको फैलाया गया है. तो as we can see that here in the first case रेड टॉप है, रेड टॉप है यानी जिस साइड की तरफ रेड है उसको टॉप किया गया है. तो जब रेड टॉप होगा तो उसका साइड येलो और ब्लू आ सकता है. दिस इज़ पॉसिबल. आफ्टर दैट in the second figure we can see that yellow is the top. जब येलो टॉप में होगा तो ग्रीन बॉटम में होगा, और ये ब्लू और रेड दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ आ सकते हैं. लेकिन जब यहाँ हम थर्ड वाले फिगर को देखेंगे, जब हमारा येलो टॉप में होगा तो ग्रीन को बॉटम में होना चाहिए, जबकि ग्रीन यहाँ एडजेसेंट में है, जो कि रॉन्ग है. जब हम फोर्थ वाला देखें तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेड हमारा टॉप में है, तो हमारे बॉटम में क्या होना चाहिए. इफ़ रेड इज़ इन द टॉप तो बॉटम में पिंक होना चाहिए, लेकिन पिंक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 3 and 4 कैन नॉट बी फॉर्म्ड आउट ऑफ इट. 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर्स. Okay, after this we have to develop the skills locating, orienting, recomposing, decomposing, shifting dimensions, balancing. These all activities we have to explore.
Okay, so these are some example. We have to match the shapes that are like same. Okay, so here one triangle is being matched. तो यहाँ पर क्या है, दोनों सेम ट्राइंगल है लेकिन उनको थोड़ा अलग तरीके से रखा गया है. यही हमारी रियल लाइफ सिचुएशन भी होती है. कई बार हमें चीज़ों को कमरे के अंदर फिट करना होता है या किसी पर्टिकुलर जगह पर रखना होता है, लेकिन जिस तरह से वो एज इट इज़ होते हैं उस तरह से उसको प्लेस नहीं करना होता, थोड़ा एडजस्टमेंट करना होता है. तो दिस इज़ व्हाट स्पेशल रीजनिंग इज़, कि आप जो ऑब्जेक्ट्स हैं 3D ऑब्जेक्ट्स, उनका रिलेशन निकाल सके स्पेस के साथ. तो वी कैन सी दैट दिस ट्राइंगल इज़ सेम एज द ट्राइंगल विच इज़ बीन मैच्ड. उसी तरीके से जो सेकेंड ट्राइंगल है, दैट ट्राइंगल वुड बी सेम एज द ट्राइंगल विच इज़ गिवन इन द नेक्स्ट कॉलम सेकेंड. Okay, then the third triangle would be matched to the fourth triangle that is given. After that, the fourth triangle would be matched to the last triangle of the second column, and the last triangle of the first column would be matched to the first triangle of the second column. तो it won't make any difference. अब आपका डबल बेड होता है, this is a 3D object, तो you can place in a room इन डिफरेंट टाइप्स. आप उसको अलग अलग तरीके से अपने कमरे में रख सकते हैं. ज़रूरी नहीं है आप उसको एक ही पोजीशन में रखें. आपके सोफ़ा होते हैं, आपके टेबल होते हैं, आप इस तरह से अपने सामान को एडजस्ट करते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ सके और आपका जो अरेंजमेंट है वो ब्यूटीफुल भी लगे, सिमेट्रिकल भी लगे. तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पेशल रीजनिंग. Some examples from the textbook are also given. Here you can see one rectangle is matched to the other rectangle, which are not placed in the same manner but both are same in dimensions. एक जैसे उन्हें प्लेस नहीं किया गया है लेकिन उनकी लेंथ ब्रेथ सब सेम है, एरिया सेम है, पेरीमीटर सेम है. ओके, नाउ रूही ने यहाँ पर दो बॉल के ट्रेसेस बनाए हैं. एक बॉल का ट्रेस बड़ा बना है, एक का छोटा बना है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट? जब उसने जो ओपन वाला पार्ट है बॉल का उससे ट्रेस बनाया तो शी गॉट अ बिग सर्कल. एज वी नो दैट कि जो आपका बॉल है, बॉल क्या होता है, बॉल एक स्फेरिकल, एक पार्ट ऑफ स्फेयर है. बॉल यहाँ पर आपका पार्ट ऑफ स्फेयर है एंड वी नो दैट स्फेयर इज़ अ 3-dimensional ऑब्जेक्ट. सो व्हेन शी ट्रेस्ड दिस बॉल फ्रॉम द बिगर एंड, तो शी हैज़ गॉट द बिग सर्कल. एंड जब उसने बॉटम से उसको किया, बॉटम से ट्रेस किया, तो शी गॉट द स्मॉल सर्कल. ओके, तो इससे उसको एक स्पेशल अरेंजमेंट होगी कि अगर उसे बर्तनों को रैक में रखना है तो वो किस तरीके से रखे कि बर्तन कम से कम जगह ले, कम से कम जगह घेरे. ठीक है. ओके, आफ्टर दैट हेयर वी हैव गॉट अ पैटर्न. एक इस तरह का हम गेट है, उसमें इस तरह का डिज़ाइन बना है, तो कौन सा डिज़ाइन पॉसिबल नहीं है. तो एज वी कैन सी दैट कि 3 एरोज़ ऊपर से हैं और 2 कर्व्स नीचे से हैं. तो जो भी पैटर्न बनेगा इसको यूज़ करके उसमें इस तरह के 3 ट्रायंगुलर पार्ट एंड 2 कर्व्स पार्ट होंगे. तो फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है और लास्ट वाले में भी है. लेकिन जो फोर्थ वाला है उसमें कर्व पार्ट नहीं है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, स्पेशल रीजनिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्पेशल रीजनिंग, अब अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं कहूँ तो बच्चों को अपने बैग में जो बुक्स, टिफ़िन, पेंसिल बॉक्स या कोई और सामान रखना होता है, तो अगर उन्हें स्पेशल रीजनिंग आती है तो लिमिटेड स्पेस का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. दे वुड बी अंडरस्टैंड और दे वुड बी एबल टू मेक अरेंजमेंट्स कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान को कम से कम जगह में रख सकें. कौन सी चीज़ किस तरीके से रखने में ज़्यादा जगह लेगी, कौन सी चीज़ किस तरह से रखने में कम जगह लेगी, कौन सी चीज़ ऊपर से देखने में कैसी लगेगी, नीचे से देखने में कैसी लगेगी, साइड से देखने में कैसी लगेगी. यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. सो दिस इज़ माई बिट. देन there are 12 pantomimes minos if we delete reflections and rotations. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z are the alphabets that are drawn with the help of a cube. Now 10 grams. We can make different shapes using 10 grams. 10 grams is a Chinese art of creating different shapes, kind of origami, by folding, by making different
angles we can form different objects.